هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. میرے محترم حاضرین، پیارے بھائیوں، اللہ تعالی ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں عطا فرمایا ہے اور ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتنی نعمتیں دیا ہے تو تم گن نہیں سکتے. اللہ کی نعمتیں کتنی دیا ہے ہم اگر گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے. کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ یہ قرآن کی آیت کے معنی اور مطلب میں ایک حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، مطلب ساری دنیا کے لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا اور اس کی بہت ساری نیکیاں ہوں گی، نیک اعمال، نماز، روزہ، اللہ کا ذکر، خیر خیرات، لوگوں کی مدد کرنا، بہت سارے نیک کام کیا. اب وہ اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب دیکھ کر کہے گا اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں بھیجو، میری رحمت سے جنت میں بھیجو. تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کیا اللہ پروردگار، تیری رحمت سے جنت میں جانے کے لیے جن کے پاس کیا بھی نیکیاں نہیں ہیں پورے چل جائیں گے، جا سکتے ہیں، میں تو اتنے نیکیاں کر کے لایا ہوں، اتنے نمازاں پڑھا ہوں، روزے رکھا ہوں، تو یاد کیا ہوں، ذکر کیا ہوں، تسبیح پڑھا ہوں، بہت سارے نیکیاں کرا ہوں، کیا اللہ کیا میرے نیکیاں کی کیا بھی قدر نہیں؟ انہیں اپنے آپ میں سمجھتا ہے میری نیکیاں کی کیا بھی ویلیو نہیں، اتنے نیک کاماں کرا ہوں میں، اللہ میرے نیک کاماں کے بدلے میں حساب کتاب کر کے میں اتنے نیکیاں کرا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے جنت میں بھیجے گا نہیں کیا؟ اپنے دل و دماغ میں ایسا سوچ کر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے اللہ کیا تو مجھے میرے نیکیاں کے بدلے میں جنت میں بھیج سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی اب وہاں تو ترازو ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو رکھتا ہے، ترازو میں اعمال تولے جاتے ہیں، اعمال کا مطلب ہمیں کرے سو کاما تولتا ہے اللہ تعالیٰ، گنتا نہیں، گننا الگ تولنا الگ. اس کے لیے کیا ہے آسان مثال، برگل ہے، ایک موٹے میں تمہیں گنے تو ہزاران کے برگل رہتی لیکن ان کا وزن کم ہوتا ہے، لیکن ان کا وزن موٹا اتنا بڑا ہے، 10-20 کلو کا برگل کا موٹا اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ لوہے کا پتھر جسے بٹ کہتے ہیں پیور اردو میں، اگر توڑنے کے لیے تمہیں رکھیں گے اتنا چھوٹا پتھر حجم میں اس کی کوانٹٹی اتنا ہے لیکن یہ اس سے زیادہ وزن نہیں ہے، یہ حالانکہ موٹا بڑا ہے.
तो आमाल अल्लाह ताला क़यामत के दिन तोलेगा, वजन करेगा, गिनेगा नहीं। तो जब आमाल का वजन किया जाएगा तो अल्लाह ताला क्या कहेगा कि इसके नेकियां तराजू के एक पलड़े में रखो, तोलो, और मेरी नेमतें जो मैं इसे दिया हूं मेरे बंदे को, एक नेमत बल्ला के नको, हाथा एक नेमत, ये हाथ एक, ये हाथ एक, ये हाथ से खाते हैं, ये हाथ से दूसरे कामा करते हैं, हंकिया से देखते हैं, काना से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, पावा से चलकर जाते हैं, दिमाग से सोचते हैं, समझते हैं। तो ये मेरी नेमतें हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, ये सारी मेरी नेमतें हैं, ये काम करो, मेरी एक नेमत निकालो इसकी, और एक में भी फिर आधा आप लो। एक नेमत क्या है, ये दोनों हंकियां देखने की ताकत है इनके अंदर, ये दो हंकियां भी एक नेमत, वो दो में आधा निकालो, तो क्या एक हंकी निकाल कर तराजू में रखो, और इसकी जिंदगी के सारे नमाजा रोजे पूरे उठाकर तराजू में रखो। तो क्या करेंगे फरिश्ते, उसी तरह से रखेंगे, उसकी एक हंकी निकाल कर एक तराजू में, और उसके सारे नेकियां एक तराजू में रखेंगे। अब जब अल्लाह ताला वजन करेगा, तोलेगा, तो एक हंकी ज्यादा वजन वाली हो जाएगी, एक आंख जो है ज्यादा वजन हो जाएगी। इसकी जिंदगी के सारे नेक कामा, नमाज, रोजा, ज़कात, खैर खैरात, जितने भी अच्छे कामा करा था, वो पूरे तराजू में हल्के हो जाए और ऊपर उठ जाएंगे, और ये एक आंख नीचे आ जाए। तो अल्लाह ताला पूछेगा कि बंदे, मैं इंसाफ करना चाहता हूं तेरे साथ, मैं तेरे साथ इंसाफ करना चाहता हूं, देख मैं तुझे इतने नेमतें दिया हूं, एक नेमत में आधा हिस्सा, पूरा नहीं, एक नेमत में आधा हिस्सा, एक हंकी को रखो तोले तो तेरे नेकियां बराबर हुए नहीं, बराबर हुए नहीं। और एक हंकी के लिए, और एक आंख जो तुझे दिया हो उसके लिए नेकियां ले लेगा। अब हाथ दिया हो उसके लिए नेकियां लेकर आ, पावा दिया हो चलने के लिए उसके लिए नेकियां लेकर आ। तेरे मैं इंसाफ से फैसला कर दूं, मैं क्या भी तेरे ऊपर जुल्म करता नहीं, मैं क्या भी तेरे ऊपर नासिल करता नहीं, बराबर बराबर इंसाफ से तेरे नेकियां की कदर है, तेरे नेकियां जिनको हिसाब करको वजन करको के जन्नत में भेज दो, लेकर आ। अब कहीं नेकियां करने का वक्त और जगह कौन-सी, नेकियां करने का वक्त ये दुनिया और जगह ये दुनिया। ये दुनिया से जब आदमी मर करके वो दुनिया में चले जाता है खबर में, उसके बाद हशर के मैदान में जब चले गया तो वहां नेकियां करने का वक्त भी नहीं है और वो जगह भी नहीं, वहां नेक काम क्या भी कर सकता नहीं इंसान। वहां क्या करता है, खाली खड़े को हिसाब देना, तो अब नेकियां कहां से लाएंगा। तो उसके बाद बोलता है, या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, ऐ परवरदिगार, तेरे रहम से जन्नत में जा दो, तो नक्को ले, ये हिसाब किताब नक्को। अगर हिसाब किताब देखे तो जन्नत में जाने का सवाल नहीं, क्यों, कहीं नहीं क्या खत्म हो गए। पूरी जिंदगी के नेकियां एक नेमत में आधे हिस्से के बराबर भी नहीं है, तो और एक आधे हिस्से को नेकियां कहां से लाएंगे। और बाकी के जितने चीजें है नेमतें, उसके लिए इन्हें नेकियां कहां से लाता है, ला सकता नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला से मिन्नत समागत करेगा, गिराएगा, आजिज़ी करेगा, अल्लाह 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 धंधे ले भाई, धंधे धंधे तेरे नेकियां बढ़ा, अयो नक्को अल्लाह हो सकता नहीं मेरे से, अब मैं क्या भी कर सकता नहीं, क्या भी नहीं है मेरे पास। तो अल्लाह ताला उसके बाद कहेंगे, अच्छा चलो इस बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में भेजा, मेरी रहमत से जन्नत में भेजा। बाद में अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से जन्नत में भेजता। तो इससे क्या मालूम होता है कि कोई भी आदमी कितने नेकियां भी कर लो, कितने अच्छे काम भी कर लो, सारी जिंदगी नमाज रोजे में गुजार डाला, तो भी अगर बराबर बराबर हिसाब किताब देकर जन्नत में भेजना है तो उन्हें जा सकता नहीं। हमारे नेक आमाल के साथ क्या होना, अल्लाह की रहमत हमारे हिस्से में रहना, अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर
हमने को लपट लेना, साया करना, अल्लाह की रहमत से हम जन्नत में जा सकते हैं। तो ये बात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि कोई आदमी अपने अमल के हिसाब को बराबर बराबर कर ले तो कैसा बराबर बराबर, केजी गोश्त बोटले का 900 दिए, केजी गोश्त लिए बराबर, कम दिया तो कहीं कम देता है, तो बोला जितने पैसे मैं देता हूँ मेरे पैसे मेरा गोश्त दे, नहीं हमें पैसे कम दिए तो केजी गोश्त 700-600 दिए तो उन्हें सुनता है क्या, बोलता नहीं कहीं बराबर बराबर दो, मैं चीज दिया हूँ बराबर कीमत दो, तुम्हें मैं कीमत दिया हूँ तो बराबर चीज दे। तो बराबर बराबर का मामला दुनिया में चलता है। आदमी कम लेने के लिए तैयार नहीं होना, तो कम देने के लिए तैयार है लेकिन कम लेने के लिए तैयार नहीं है। वैसा अगर अल्लाह भी बराबर बराबर हिसाब करे तो कोई आदमी भी जन्नत में जा सकता नहीं जा सकता। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तो सहाबा बैठे थे, सुने और पूछे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी हालत तो ऐसी है, हमारी बात तो ऐसी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्या है, सारे इंसानों के सरदार हैं, सारे इंसानों के सरदार ही, सारे नबियों के सरदार ही, सारी दुनिया के 1,24,000 पैगंबरान से बढ़कर आपका दर्जा है, ये समझते थे सहाबा। तो पूछे, या रसूलुल्लाह क्या आप भी नहीं जा सकते? इतने नमाज़ पढ़ते हैं, इतने रोजे रखते हैं, कैसे रोजे रखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालूम है कि हमने आपको रमजान के पूरे रोजे रखते हैं, फिर तो शाबान में भी ज्यादा रोजे रखते हैं और हर महीने में तकरीबन 11 रोजे रहते हैं, हर महीने में। जुमेरात को रोजा, नफिल रोजा, पीर को रोजा। साहबा पूछे, क्यों आप जुमेरात को भी रहते हैं, पीर को भी रहते हैं? तो नबी साहब ने फरमाया, हर जुमेरात को और पीर को अमल नामा अल्लाह के पास जाता है, रिकॉर्ड फरिश्ते ले आकर रिकॉर्ड पेश करती। तो मैं चाहता हूं कि जब मेरे रब के सामने मेरा हिसाब किताब गया तो इस हालत में मैं रहूं कि मैं रोजे से रहूं। फरिश्ते ले आकर दिखाएंगे तो अल्लाह पूछेगा कि कैसी हालत में है, तो रिकॉर्ड देखो, अल्लाह तेरा बंदा तेरे नबी आज रोजे से ही, तेरी इबादत में ही, तो मुझे ये पसंद है करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, हर जुमेरात और हर पीर को रोजा रखते थे, नफिल रोजे, फर्ज नहीं नफिल रोजे। उसके बाद अब वार में 4-2-8 यानी कंपल्सरी कर को नहीं, कभी छूट गए भी रहेंगे लेकिन ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसा रखते थे। और चांद के 13, 14, 15, चांद के 13, 14, 15 पुण्यम रात आते, तो ये 3 रात दिन आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते थे, नफिल रोजे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत ऐसी है, हमें रमजान के रोजे रखने तल्ले पर हो जाते हैं, मैं भी तुम्हें भी, और रमजान ही नहीं ये पूरा साल जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते थे। रोजान का हाल यह था। नमाज का हाल क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, फिर रोजाना तहज्जुद की हर दिन पढ़ते थे, फिर इशराक की नमाज पढ़ते थे, सुन्नतां पढ़ते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की नमाज पढ़ते थे। तो नमाज़ों की हालत भी ऐसी थी और नफिल नमाजों की हालत कैसी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाज पढ़ने के लिए, तहज्जुद पढ़ने के लिए जब खड़े होते तो 1.5 घंटा 2 घंटे पढ़ते, गुजारे पारे समझो 2 से 4 तक। अल्लाह का हुक्म भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, ऐ नबी उठो रात में, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात में खड़े को तुम्हें नमाज पढ़ो, अल्लाह का हुक्म था। निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला, आधी रात पढ़ो। कितनी रात है? आधी रात। हमें यहाँ मैं भी तुम्हें भी, मैं बोल बच्चों को मुझे मिला के बोलता हूँ, हजरत अगर 10 नमाज़ें पढ़ाते थे, ईशा की नमाज 15 नमाज़ें पढ़ाते रख लो, सुबह की नमाज 2 रकात 10 नमाज़ें पढ़ाती, वो जब 15 नमाज़ें 20 नमाज़ें पढ़ाए तो मैं समझ आता हूँ नमाज को, क्या हजरत पामा दर्द उठा ली, कमर दर्द उठा ली, हम ऐसा बोलते पढ़ सकते थे, हमारे बुजुर्ग का नहीं, एक 5 मिनट ज्यादा हुआ था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, तहज्जुद की नमाज इतनी लंबी पढ़ते कि आपके पैरों में वर्म आ जाता, वर्म तो फूट जाते थे, तलवे फूट जाते थे। और आदमी ज्यादा खड़े थे कि उसे तलवे ऊपर फूट जाते। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्म आ जाता था।
अम्मा आयशा पूछती हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह तो आपके सारे लफ्ज़िशा गुनाह करके बोलना है, नबी साहब कोई गुनाह नहीं था, क्या कभी छोटी मोटी भूल चूक है तो भी उसे भी माफ कर देंगे, अल्लाह बोलने लगा है मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, यानी अगले पिछले क्या भी हम दे पूरा हिसाब माफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या भी बाल के वक्ती गलती नहीं थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अम्मा आयशा पूछती हैं, अल्लाह ताला आपको इतना ज्यादा रहम कराया है, माफ कराया है, तो फिर इतनी लंबी नमाज कहीं को मामूल पढ़ ले जाने क्या? तो अम्मा आयशा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए तो भी नमाज पढ़ना नहीं क्या? क्या मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करने, अल्लाह इतना बड़ा इनाम मुझे दिया है, मेरे सारे लफ्ज़िशों को माफ कर दिया है, तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना पड़ता। तो तहज्जुद इतनी लंबी पढ़ते थे कि पाँव फूट जाते थे तलवे। तो इतनी नमाज पढ़ते हैं, तो ये सब सहाबा जहन में रख लो, क्या बोले, या रसूलल्लाह, क्या तुम्हें भी तुम्हारी नमाज रोजे इबादत के बदले में जन्नत में जा सकते नहीं? अल्लाह भेजता नहीं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, वाला आना, मैं भी नहीं, मेरी इतनी नमाज, इतने रोजे, इतनी तस्बीह, अल्लाह को इतना याद करना, अल्लाह को, और कुरान रात दिन पढ़ते थे, इतना पढ़ा तो भी अल्लाह अगर मंजे भी बराबर हिसाब करके जन्नत में भेजना हो तो हो सकता नहीं, मैं भी जा सकता नहीं, मगर इल्ला अन यतगम्मदनी रब्बी बिरहमतिही, मगर अल्लाह की रहमत चद्दर के सर का, एक चादर बेडशीट वाले कहेंगे हमें, तो ऐसा बेडशीट के सर का आप गोल लपट लेती है बंदे अल्लाह की रहमत, और अल्लाह की रहमत में जन्नत में लेके चले जाते, अल्लाह की रहमत से मैं जन्नत में चले जाते। तो इसलिए बस अगर काम तो उठा सोचेंगे, हमें कितना करें तो क्या करने के अल्लाह की रहमत दिया, नहीं, हमें करना तो पूरा करना, भीड़ को अल्लाह की रहमत आ जिसको, हमें क्या भी करें तो क्या फायदा। अब एक बच्चा है, वहां पर को पढ़ा है, लिखा है, 30 को 3 मार्क आगे, 30 को 4 मार्क आगे लगाया है, पास होने 30 को पास होना, एक की 2 की कम ही, सर मैं वहां पढ़ी सर, मुझे क्या समझ में आया नहीं, वहां पर को पढ़ा लिखा हूँ, 1 मार्क कम आए, 2 मार्क का कम, क्या दालो सर प्लीज सर तू ये बहुत सार का जान दे जा भाई, 1 मार्क की 2 मार्क की रहम कर को डालता है, डाल को अल्लाह वो टीचर क्या करते हैं पास कराता है। वैसे इसका खाली पेपर दे डाल को 1 मार्क की 2 मार्क की लगे इसका, नहीं तो 5 मार्क का भी लगाया करो, सर मैं 5 मार्क का लिखो, तुम्हें 30 मार्क का एक्स्ट्रा डालो, मैं कैसा डालना कहता है टीचर है, कहाँ डालना भाई, मेरे से बड़ा ऑफिसर पूछा करे, तू इतने मार्क का डाले ना, उन्हें लिखे तो 5 मार्क का को, तो 30 को 5 मार्क का कैसा डाले भाई, तो मैं क्या जवाब बोल रहा, मैं डाल सकता नहीं, 1 मार्क 2 मार्क है तो मैं भी क्या कि समझा से बोल लेता हूँ। तो दुनिया में हमें करते नहीं, दुनिया में हमें करते नहीं। अब अल्लाह ताला मैं क्या भी करेंगे, अल्लाह नमाज पढ़ेंगे, रोजा खाने, कभी जिंदगी पूरा भी मेरे भेजा कैसा पूछता है, हमें करके सो करना, हमारे से कितना हो सकता है उतना पूरा कितना हो सकता है, तो वो नफिलान के बारे में, फर्ज के बारे में नहीं, फर्ज को पूरा करना, नफिलान के बारे में जो ज्यादा से ज्यादा हमें कितना कर सकते उतना करे, तो इंशाअल्लाह जो कम सरस होता है क्या तो भी अल्लाह ताला अपने रहम करम से हमारे ऊपर रहम कर को, उसकी रहमत से हम ना और ज्यादा नहीं क्या दे तो इंशाअल्लाह जन्नत में भेजता है। तो कुरान की जो आयत में शुरू में आपको सुनाया उसका माना क्या, अगर तुम्हें अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, तुम्हारे से हो सकता नहीं। अल्लाह ताला की नेमत सबसे बड़ी नेमत क्या है, पानी नहीं तो इंसान रह सकता है क्या, ये सबको मालूम, बच्चा को मालूम, पीने के लिए पानी होना, नहाने के लिए पानी होना, कपड़े धोने के लिए पानी होना, पेशाब पैखाना धोने के लिए पानी होना, पकाने के लिए पानी होना, पानी के बगैर इंसान जिंदा रह सकता नहीं। वो जो कुरान में अल्लाह फरमाए 1400 साल पहले फरमाया, क्या फरमाया, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, हमने पानी से हर चीज को जिंदा पैदा किया, कोई भी चीज दुनिया में जिंदी है तो पानी से,
पानी में तो कोई सी चीज भी जिंदा रह सकती नहीं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चरिंदे परिंदे, कीड़े मकोड़े, झाड़ा घास, फल फूल, कोई सी चीज भी बगैर पानी के जिंदा रह सकते नहीं। वो सारी चीजें जिंदा हैं तो किसकी वजह से ही? पानी की वजह से ही। तो ये बात अल्लाह कुरान ने फरमाया, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन है, और हमने हर चीज को पानी के जरिए जिंदा रखे हैं। तो पानी एक नेमत है, पानी नहीं तो हम रह सकते हैं क्या? पानी नहीं तो हम रह सकते हैं क्या? उसके लिए एक छोटा किस्सा है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो स्कूल में बच्चों को सबक में किस्सा है। एक आदमी के पास एक घड़े में पानी था, समझने के लिए, ये कुरान हदीस की बात नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है। अल्लाह की नेमत की कदर कैसा करना कर सकती है। एक आदमी के पास हर सफर में जाते थे आदमियां, कहाँ जाते थे? रेगिस्तान में तो बालू टेढ़ारी प्रांत में जाते थे। जरा जरा पानी लाए थे, हो गया उनका पानी। और एक आदमी एक घड़ा पानी एक्स्ट्रा ला लिया था, वो चमड़े की थैली में ला लेते, वो पानी रख लेता है, इसका मामूल पानी पी लिया है, बाकी पानी है। अब पानी खत्म हो गया, भाई क्या करना, हमने खुद पानी होना, एक गिलास पानी दे भाई, प्यास से तड़पते ही इनको बोल। तो इन्हें बोला नहीं देता नहीं मैं। क्या वो चुप क्या है? क्या पानी? क्या भाई? एक गिलास पानी 1 रुपया देता नहीं। अब कितने गिलास? 100 गिलास आते, 100 रुपए समझो घड़ा पानी। तो इन्होंने क्या भाई गिलास पानी क्या? तू भी हमारा मुसलमान भाई, हमें भी तेरे मुसलमान भाई, तो आपका पानी दे सकता नहीं क्या तू हमना को? ऐसा तो नहीं बा, मैं चुपके देता नहीं पानी, मोर को पीना। अब जब तो कहता 100 रुपए समझो घड़ा, तो वहाँ वो आदमिया में ये गिने जरा अकल वाले आदमी थे, समझदार आदमी थे, तो सब जाकर बोले, हजरत देखो हजरत, इन्हें हमारा साथी हमारा दोस्त हमारे पास पानी हो गया, जाकर पूछे देना पानी देखो। तो क्या बोलता है? गिलास पानी 1 रुपया, 100 गिलास 100 रुपए, ऐसा करके बोल रहा है। 25 लीटर है तो 100 गिलास रहने का, 4 लीटर 1 गिलास का। तो बोल रहा है क्या करने का? तो वो हजरत बोले, अरे क्या रे भाई, तुम दीवार है आदमिया, 100 रुपए सस्ता है पानी, वो बिल्कुल फ्री समझो तुम को पानी। क्या हुआ? फ्री में है सरकार तुम को 100 रुपए खरीदा हजरत, खरीदा होता बोलते ही। अब हमें भी यहाँ पानी लगा के वाटर प्लांट कर जाके था 10 रुपए पानी, 10 से नहीं तो 15 होता है ना, 10 रुपए। 100 रुपए बोला तो कैसा? तो हजरत बोले, अरे दीवाने हो पहले ले ले, बिल्कुल सस्ता पानी में देता है, तो रेट है। इन्होंने थके पीते हो गए, अच्छा लग रहा आदमी जरा डालने को ले लिए, उसका खास पानी पूरा ले लिया। अब जरूर दूर गए, जाने के बाद इन्होंने आदमी के गिलास से डालने को पीते ही बांटने को, अब इसका न पानी हो गया। हजरत मुझे पानी दो हजरत, एक गिलास पानी का। तो उन्होंने बोले, हाँ पानी हमें बोलने से भाई चुपके देते नहीं, गिलास पानी 10 रुपए का गिलास पानी। हाँ मेरा पानी गिलास रुपए के हिसाब से तुम अकेले ला हो, अब तुम्हारा पानी 10 रुपए में न ले, मैं संभाल दूंगा। अब दिल दूर गया, अब 1 किलोमीटर गया तो ये धूप को पसीने को जीप को लगते जाती है, पसीना पसीना हो जाता है, हल्ला बारह हो जाती है, क्या करना समझ में आया नहीं, गिर गया। हजरत 10 रुपए दे डाल के गिलास पानी दो हजरत, मेरा होता ना है चलने का। उन्होंने बोले, वो हाँ 10 रुपए, अब आपको गिलास 100 रुपए गिलास पानी 100 रुपए। ये बच्चा भी सबक में है, स्कूल में है, स्कूल में पढ़ाता हूँ सबक। 100 रुपए गिलास पानी, हाँ 100 रुपए क्या है? मैं पूरा घड़ा दे रहा तुमने 100 रुपए आपको, तुम्हें गिलास गिलास आपको 100 रुपए का मुझे मैंने नकल पिता ने। अब देर दूर गया, मरता पड़ता गया, तो आधे किलोमीटर गया, उसे क्या नहीं होगा, सबको पड़गा होता नहीं मेरे से। फिर बोला, हजरत 100 रुपए गिलास एक गिलास पानी दो क्या? 100 रुपए ले लो, एक गिलास पानी दो। तो बोले, वो वहां की बात है, अब 100 रुपए को गिलास पानी नहीं, ये लेते नहीं पानी 1000 रुपए गिलास पानी का, पावा हाथा पकड़े पियो करो क्या भाई। तो बोले, ये तकलीफ दूसरा को रहती है, तू समझा क्या? ये तकलीफ है दूसरा को रहती है, तू समझा क्या?
तो वो बहन को आदमी जरा पानी दिया था तो सब्जी ने पी लिया, तू भी पी सकता था, जा सकता था, लेकिन तू क्या कर 100 रुपया को बेच लिया। अब तो 1000 रुपया दिया तो एक गिलास पानी तुझे मिलता नहीं, क्या करता है तो अल्लाह की नेमत कुदरत पानी जो है उसकी कितनी भी कदर करो हमें कम है, लेकिन अल्लाह ताला पानी क्या करा है, तुम्हारे लिए मैं नहरें बहा दिया हूँ, वजाल लकुमुल अनहार, कुरान के अंदर फरमाता है ऐ लोगों अल्लाह तुम्हारे लिए पानी के नाले नदियां बहाया है, पानी ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आता है, तुम्हें कहाँ ही वहां आ जाता है, तुम्हें कहाँ ही वहां आ जाता है, अल्लाह पहुंच जाता है। मैं इसके पहले एक बार बताया था, आज फिर सिंपल में बात बताता हूँ। अल्लाह की नेमत जो पानी की कदर जो है, अगर अल्लाह ताला ऐसा बोलता कि भाई चेन्नई में पानी है समंदर में, विशाखापट्टनम में वो समंदर को है पानी, जमीन के ऊपर काफी पानी नहीं, नाले भी नहीं, नदियां में नहीं, बोरिया भी नहीं, पहाड़ा पर क्या भी नहीं, तो मैं कितना पानी होगा जाके निकाले दो। तो हमें चेन्नई को जाकर पानी निकाल सकते क्या, रोड भी जाकर नहीं, विशाखापट्टनम को नहीं, कन्याकुमारी को नहीं, केरला जाकर पानी ला ले सकते क्या? हमें तो नजदीक ही कहा चेन्नई को 200 किलोमीटर, अब जरा हो तो 300 400 500 किलोमीटर पानी मिलता है। और तुम्हारा पंजाब वाले अगर जमीन को पानी नहीं, पंजाब कितनी दूर है, पानी करने को आना तो 1000 किलोमीटर आना, कब आना आदमी, कब वो पानी ले जाना, पीने के लिए कितना पानी होना, नहाने के लिए पानी कितना होना, जिंदगी में कभी नहाता ना आदमी, कैसा नहाना, घड़ा पानी वहां से धोले का आना नहीं, वहां नहा ले तो पीने का पानी एक घड़ा लगा तो उन्हें ले लगा घड़ा पानी हो जाता है, वहां पीता, पका खाना कैसा, जिंदा रहना कैसा, पूरे अपना समंदर के किनारे रहते और खारा पानी, मीठा पानी नहीं है समंदर का, खारा मुंह में डाले तो अंदर कड़वे से रहता है खारा पानी। तो इस तरीके से अल्लाह की नेमत, अल्लाह ताला ये वाटर साइकिल सिस्टम को भी कुरान के अंदर बताया है। पानी को क्या करता हो, सूरज की गर्मी से भाप बनकर पानी आसमान में अबर की शक्ल में जाता है, और वो अबर क्या होती है, अल्लाह बोलता फरमाता है कुरान के अंदर, बरसुखना सहाबन सिखालन, पेट से बैकाम को कैसा पेट रहता है, गायों को कैसा पेट से वजन ढोते रहती है, तो वैसा ये अबरा पानी को ढोते रहती है। और हवाओं को अल्लाह हुक्म देता है कि जाओ जाकर के मलानी इलाके में कहाँ का इंसान है जानवर है, जाकर बरसो, कर अल्लाह हुक्म देता है। तो हवा क्या करती है, वो अबराम को ढकलती है। इससे मालूम हो सकता है हमने दुनिया के हिसाब से भी, लेकिन कुरान में ये सारी बातें अल्लाह ताला समझाने के लिए फरमाया है। ये सब सारी बातें आजकल हमको मालूम होते हैं साइंस का इम्प्रूव होने के बाद, लेकिन पुराने जमाने में 1400 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी, इतना इल्म नहीं था, तो वो जमाने में भी अल्लाह ताला ये सारी बातें बताया है कि वो अबर आती है और काम का होना कि पानी हमना खेता में, मड़िया में, बोरिया में पीने के लिए सारा इंतजाम अल्लाह ताला कराता है। तो ये पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर पानी नहीं तो हमें कौन भी जिंदा रह सकते। तो अल्लाह फरमाता है अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। और हवा सबसे बड़ी नेमत, और ये सारे दरख्तों से अल्लाह ताला हमको हवा देता है। अगर ये दरख्ता नहीं, झाड़ा नहीं तो हवा आती नहीं, हम एक हवा में जिंदा रह सकते, मर जाती पूरे में, ये बात सबको मालूम है। तो हवा भी एक नेमत है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं। तो उन सारी नेमतों से बड़ी हुई एक नेमत अल्लाह हमको दिया है। वो नेमत क्या है? अल्लाह का कलाम कुरान मजीद, अल्लाह की किताब कुरान अल्लाह ताला हमको दिया है और कहा है कि ये ऐ इंसानो, ऐ मेरे बंदे हो, ये कुरान तुम्हारे लिए हिदायत है, रोशनी है। ये कुरान को पढ़ो, समझो, इसके मुताबिक तुम्हें जिंदगी गुजारो, तो तुम्हारी जिंदगी रोशनी में आसानी के साथ तुम्हें गुजार सकते हैं। कुरान को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, बार 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 अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाया। तो वही मकसद लेकर आज हम यहाँ बैठे कि कुरान की बातें सुनना, सुनाना और उसे समझना
اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن جو کیا ہے بینات من الہدا، ہدایت کی کھلی کھلی چیزیں تم کو دیا ہوں. یہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو اور قرآن سمجھو. اب قرآن مجید ایک معجزہ ہے. معجزہ کا تو کیا، انسان کی عقل کو عاجز کر ڈالنے والی، انسان کی عقل میں سمجھ میں نہیں آنے والی چیز ہے. تو بہت سارے لوگ یہ دنیا میں قرآن کے اندر غلطیاں نکالنا کو پڑے ہیں. برٹش والے، امریکہ والے، بلّہ کے دنیا ان کے نامات میں تمہیں گوگل میں جا کر مار کو دیکھو، قرآن کو اس میں غلطیاں نکالنا کو کون کون کوشش کرے ہیں کر کو بولے تو کتنے ادنا کوشش کرے ہیں کہ قرآن پڑھ کو اس میں غلطیاں نکالنا کر کو انہوں سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور ہمارے سے پکے مسلمان بن گئے. کیا بن گئے ہیں؟ قرآن پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر ہمارے سے زیادہ پکے مسلمان بن گئے. اور کیا کہتے ہیں انہوں آج وہ قرآن کا تو ساری دنیا میں کرسچنان کے پاس، یہودیان کے پاس جا جا کو دکھاتے ہیں. کون؟ پہلے انہیں کرسچن تھا، یہودی تھا، قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور انہیں قرآن کے بارے میں ساری دنیا کو بولتا ہے اے لوگوں یہ قرآن سچی کتاب ہے، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو. انہیں بولتا ہے. ویسا بولنے والے بلّہ کے دنیا میں کون بولنے والے؟ جو قرآن میں غلطیاں نکالنا کا سوچے سوچے انہیں کیا کرے ہیں وہ قرآن کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہمارے زیادہ عمل کرتے ہیں. یہ قرآن کا ایک معجزہ، معجزہ کا تو ایک کرامت بولتے ہیں، ادبھوتم، مہا ادبھوتم کہتے ہیں. تو ایسا ایک بہت بڑی چیز کیا ہے کہ اس کے اندر غلطی نکالنا کر بولے انہوں نے اسے سپورٹ کر کے اسے پھیلانے والا دونوں ہی. یہ ایک بات ہوئی. اور دوسری بات کیا ہے، تقریباً 1450 سال ہو گئے ہیں قرآن جس وقت نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک جیسا اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ قرآن دیا ویسا آج تک باقی ہے. اس کے اندر ایک حرف کی بھی نہ کمی نہ زیادتی، نہ کم کر سکے نہ بڑھا سکتے، نہ آگے کر سکے نہ پیچھے کر سکے. جیسا اللہ تعالیٰ قرآن ہم کو دیا ویسا قرآن آج تک باقی ہے، باقی ہے، باقی ہے قرآن. اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے. آج تک بدلی نہیں. دنیا کے بہت سارے کتابیں بدل گئے، بہت سارے کتابیں بدل گئے، اوپر نیچے آگے پیچھے ہو گئے، لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے. آج بہت سارے غیر مسلم یہ بات کا اعتراف کرتے ہیں، اعتراف کا مان لینا اور قبول لیتے ہیں. واہ یہ بات قبول لینے کی بات ہے. 1400 سال سے آج کا قرآن کے اندر ایک حرف بھی بدلا نہیں، ایک زبر زیر بھی بدلا نہیں. ایسا اللہ بھیجا ہے ویسی وہ کتاب باقی ہے اور قیامت تک یہ کتاب ایسا رہنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ عرب کے لوگوں کو زمانے میں یہ حدیث سناتا ہے. سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے تو درجہ بولتے تھے یہ کیا وہ ایسے آئے تھا ویسے پڑھتے میں ہمیں بھی بول رہا تھا، ہمیں بھی کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا یہ قرآن کی آیتاں کی سرکار تمہیں بھی بنا سکتی کیا؟ اچھا لاؤ یہ کتاب لے کر دیکھیں گے، تمہیں بناؤ، تمہیں بھی بنا کر دکھاؤ ایسے کتاب. تو ان سے کسی سے ہو سکا نہیں. بڑے بڑے شاعران تھے، بڑے بڑے کویان تھے. اس کے بعد اللہ فرمایا فَأَتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهَا. اچھا پوری کتاب 114 سورے ہی تمہیں بنا سکتے نہیں تو کم سے کم 10 سورے بناؤ بھائی. 10 سورے. اب میں نماز میں کتنے سورے پڑھا؟ 2 رکعت میں 5 سورے پڑھا. اذا جاء نصر اللہ کا 1 سورہ، تبت یدا کا 1 سورہ، قل هو اللہ کا 1 سورہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. 2 رکعت میں 5 سورے پڑھا. چھوٹے چھوٹے سورے، 3-4 آیتاں. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر چیلنج کرتا ہے کسے؟ وہ زمانے کے عرب کے لوگوں کو اور قیامت تک کے لوگوں کو. اگر تمہیں یہ سمجھتے ہیں کہ تمہیں بھی ایسا قرآن کے آیتاں کے جیسا شاعری بنا سکتی ہیں، کتابیں بنا سکتی ہیں، آیتیں بنا سکتے ہیں تو ایک 10 سورے بنا کر دکھا. فرشتے کیا بولا؟ ایسی کتاب تمہیں بنا سکنا ہے تو بناؤ. ہو سکتا نہیں. 10 سورے بناؤ، ہو سکتا نہیں. اس کے بعد اللہ فرمایا بِعَشَرِ آیَاتٍ
10 आयतां पे भी बना के बोलो भाई, तुम्हें जोड़ को तुम्हारे से हो सकता है क्या कि वो 10 आयतां भी हो सकता नहीं। लास्ट को अल्लाह ताला भी आयतिन, ये एक आयत बना कर दिखाओ क्या। कुरान का चैलेंज है सारी दुनिया के इंसानों को। अल्लाह की किताब में जैसा कुरान की आयतां हैं वैसी एक आयत बनाओ देखेंगे। और क्या फरमाया, तुम्हें नहीं सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी और अब जितने इंसान, अब जितने अब इंसान और सारे जिन्नाता पूरे मिल गए तो भी एक आयत भी तुम्हें बना सकते नहीं, एक आयत भी तुम्हें बना सकते नहीं। ये कुरान का एक मौजूदा है, करामत है, कुरान की बड़ाई है, कुरान की अजमत है। इट इज मिरेकल जो तुमको कुरान के मिरेकल क्या कहते हो, उसके जैसी किताब भी लिख सकते नहीं, वैसे आयतां भी हो सकता नहीं, वैसे सूरह भी हो सकता नहीं, एक आयत भी हो सकता नहीं। जब ये बात बोले तो मक्के में एक आदमी आया, बोला मैं ये बोल तो ऐसा कर। अब उसके अजमात से पूरे भी क्या बोलता है, बोल भाई देखेंगे तो उन्हें बोलता है अल खारिया मल खारिया वमा अदराका मल खारिया। वो सूरा है भी मामूल से पढ़ के नमाज अल खारिया मल खारिया वमा अदराका मल खारिया। ओ यो मैं बोलना तो वैसा इन्हें वो रिथम में वो सिस्टम में एक जरे आयतां के साथ अरबी बना को बोला। उसके अज्ञान को देखो नबी साहब ने उसके अज्ञान ने बोला अल्फीलु मलफीलु वमा अदराका मलफीलु। फील का तो हत्ती, बोला हत्ती क्या है, हत्ती तुमको क्या मालूम, हत्ती लहू जंबुन खसीरुन व खुस्तुमुन तवील। उसे एक छोटी दुम होती है, एक लंबी सुल होती है। यारे बेवकूफ, वो कुरान के आयतां क्या, उसका माना क्या, उसका मतलब कैसा है, वो कितना स्टेज में है, तू नहीं करे बचका नहीं, बच्चे खेल लेते इसका ये मुंडे बाता लगाया तो उठे जा रहे हंसी में चुप गए। शर्मिंदा हो चलेगा, शर्मिंदा हो चले। हत्ती के बारे में कभी तो बना लेते हैं, उसके अज्ञान चुप कर जाते, शर्मिंदा हो चलेगा। तो कुरान की एक स्पेशलिटी एजाज क्या है कि क़यामत तक ऐसी किताब कौन भी, ऐसी आयतां कौन बना सकते नहीं, और ये बदलने वाली नहीं है। और दो बात, तीसरी बात क्या है, इसमें हिदायत है, नूर है, रोशनी है और शिफा है, बीमारियों की शिफा है। बीमार के पर तुम्हें पढ़ को फूको, इंशाअल्लाह उसकी शिफा भी हासिल होती है। अल्लाह ताला वो चीज इसके अंदर रखा है। अच्छा, तो कुरान से बड़ी नेमत हमारे लिए और क्या भी नहीं। क्यों? कुरान में अल्लाह के बारे में है, हमारा मालिक, हमारा पैदा करने वाला कौन, कैसा है, कहाँ है, उसके बारे में मालूम कर लेना है। तो क्या होगा, कुरान पढ़ना। कुरान पढ़े तो हम आपको पर्टिकुलर सी पूरे सही बातें मालूम होती। किसके बारे में? अल्लाह के बारे में। पूरे सही बातें किससे? नबियान के बारे में कुरान पढ़े तो मालूम होते हैं। जन्नत के बारे में कुरान पढ़े तो मालूम होता है। दोज़ख के बारे में कुरान पढ़े तो मालूम होता है। क़यामत के बारे में कुरान पढ़े तो मालूम होता है। जिन्नात के बारे में कुरान पढ़े तो मालूम होता है। फरिश्तों के बारे में कुरान पढ़े तो मालूम होता है। यानी कुरान में ये सारी चीजें अल्लाह ताला रखा है। तो ये बहुत बड़ी नेमत, एक इंग्लिश में बोलते इंसाइक्लोपीडिया थी। तो क्या उसमें सारी चीजें आ जाती, एक ऐसी किताब दुनिया की सारे बातें उसमें आ जाती। तो वैसा हमारे इस्लाम की इंसाइक्लोपीडिया। अच्छा तुम्हें क्या सुनते ही, क्या हो? तो बोले भैया अल्लाह का कलाम कुरान की आयतें सुनते ही बात में अच्छा मंजरी सुनाओ है। जब हजरत को बोले हजरत जब आओ है, उन्हें डरते डरते आए, आकर बैठे, वो कलाम के लेकर कि आयता सुनाते ना, वो मंजरी सुनाओ है। तो उस वक्त सूरह ताहा की आयतें सुनाए। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। अल्लाह ताला फरमाता है ताहा, हम ये कुरान आपके ऊपर आपको तकलीफ देने के वास्ते नाजिल करे नहीं। एक इंसान को तकलीफ देने के वास्ते अल्लाह कुरान नाजिल करना इल्ला तज़किरतन, मगर नसीहत के वास्ते कुरान हम नाजिल करेंगे। वो आयता पढ़ते थोड़ी देर, उन्हें पढ़ते पढ़ते टिका को देखे तो हजरत उमर के आंखों से आंसू चले जाते हैं, रो सकते हैं, डब 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 पानी चल जाता।
तो सुनने के बाद असर इतना होता था कि आदमी के आंखों से आंसू आ जाते थे। उसके बाद बोले मोहम्मद कहाँ ही है, वो फलाने घर में है, तो चलो मुझे बुला ले, चलो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो बुला ले को गए। तो गली में देखने वाले क्या करें, आहा जाते हैं, इनका हिस्सा हो जाता है, इनका हिस्सा मोहम्मद का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि अब तक मुसलमान हुए थे। उम्र कितने साल हो गए थे? 5 साल हो गए थे। नबी साहब पैगम्बर बन को 5 बरस हो गए थे, एक ही गौ में 2 जने भी ही, नबी साहब ने हजरत उमर भी अब तक मुसलमान हुए नहीं थे, दुश्मनी में थे। उसके बाद वो घर में गए, और घर के नबी साहब और एक 10 सहाबा अंदर बैठ कर एक दिन की बात, कुरान की बात बोलते थे। एक आदमी दरवाजे में खड़े देखता था, कौन तो आती क्या, कहीं तो दुश्मन का हिस्सा था, कौन तो पकड़ मारती क्या, गले क्या। तो वो साहब देख को बोले हजरत क्या भाई, बड़ा दुश्मन आता है कौन? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अभी मुसलमान हुए नहीं। तो नबी साहब ने बोला आने दो, कोई बात नहीं, आने दो। हजरत उमर गए, जाको दरवाजे में अंदर गए, तो नबी साहब गए हजरत उमर के पास और ऐसा कपड़ा पकड़ के झिंझोड़े और बोले अरे उमर, क्या तेरे जैसा समझदार आदमी, तेरे जैसा अक्ल होश वाला आदमी और अच्छी अक्ल रखने वाला आदमी, अब तक तो ये बात समझ में आई क्या? अरे उमर, पर पूछे नबी साहब तो आज उमर होते हैं या रसूलुल्लाह, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई है, तो मैं आप कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ, मुसलमान होने के लिए आया हूँ, मुझे कलमा पढ़ो। तो नबी सल्लल्लाहु सारे सहाबा के सामने कलमा पढ़े, मुसलमान हुए, और मुसलमानों अच्छे से 10 हज़ार खुशी में भर गया और बोले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हवाला जोर हो गए। तो गली में सुनने वाले क्या समझे, काम होगा, इसका मोहम्मद का काम होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हें गया आदमी तलवार लेकर जाकर मार डाले आदमी, और वो घरा खड़े खड़े बोल देते हैं। उसके बाद हजरत उमर बोले या रसूलुल्लाह, मैं अब मुसलमान हो गया हूँ, क्या हमें हक पर नहीं? तो हाँ हक पर है, तो फिर डरने की क्या जरूरत, चलो जाइए बाहर काबतुल्लाह में जाकर नमाज पढ़ेंगे। तो हजरत उमर सामने सामने तलवार लेकर जाते हैं, तो उनके पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके पीछे मुसलमान पूरे जाकर नमाज पढ़े काबतुल्लाह। ये गली में देखने वाले पूरे ये क्या हिस्सा उल्टा होगा, ये आदमी जहाँ पर डालना तो उधर से डालना लेना, इन्हें तलवार से डालने गया, उन्होंने अखलाक से डालना ले, कैरेक्टर से, अच्छेपन से, नरम करने से डालना ले। ये नरम करने को आदमी भूलना ना, क्या रे भाई? तो नबी साहब बोलते हैं अरे उमर, कल मैं दुआ कराया था अल्लाह से, अल्लाह मक्के में उमर के हक में अल्लाह ताला ये 2 उमरा में, ये उमर तो भी, ये उमर तो भी, किसी को भी देने को तो अल्लाह को कबूल कर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे थे, वो दुआ ये उमर के हक में कबूल हो। तो ये किस्सा चला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर बनने के 5 साल के बाद। ये कुरान की आयतों का असर कैसा, एक्सरे फोटो उठाने के लिए अंदर के हड्डा में एक्सरे जाओ, इधर से उधर को चले जाओ, हमारे हड्डा कैसे ही काम टूटी, काम करक्सी है, काम बारीक है, मोटा है, पूरा एक्सरे में दिखा डालता है, अंदर चले जाती रेस रोशनी चली जाती है। तो वैसा कुरान की रोशनी, कुरान के आयतों का असर इंसान के भेजे में चले जाता है, और जहाँ पर इंसान को कबूल करना समझाना। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, इसके पहले हिस्सा चला तो लोग बोलते थे भाई उमर ये कहेगा कि मोहम्मद कह आयता पढ़ता है, कह कि सूर्य देते आयता पढ़ता होता है, वो क्या कि हमारा समझ में आता नहीं ऐसा। तो हजरत उमर बोले अच्छा ले फेरो, मैं भी सुन दू उन्हें क्या पढ़ते हैं, कि कहाँ पढ़ती क्या करते हैं। तो वो काबतुल्लाह करने आती, नमाज पढ़ने वास्ते रकात पढ़ ले तो नमाज पढ़ते हैं, सूर्य पढ़ते हैं, घटी हाँ पढ़ती हूँ, सुनना का तो हम मालूम होता है। तो हजरत उमर क्या करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके से देख ले को काबतुल्लाह की दीवार को पर्दा है, गिलाफ गति से पर्दा कपड़ा लगे दीवार के ऊपर, कपड़ा गोल, तो वो कपड़े के पीछे जाकर छप गए, ये दीवार को लगने को खड़ी, कपड़ा सामने डालने को खड़ गए, दिशे में से आदमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह को रकात डाल लिए, नमाज पढ़ते हैं, सूर्य पढ़ते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुनते गए, झटकने को भाग गए, वहां से झटकने को भाग गए। क्या भाई सुने क्या? तो क्या सुनेगी, खैजाल ही वो आए का, वो सूर्य वो आए का, अट्रैक्शन खैजाल इसका है। मुझे डर होगा
मैं कहां मुसलमान हो जाता हूँ, क्या होगा? मैं कहां मुसलमान हो जाती हूँ, डर को भाग आना से जी टटले से क्या नहीं, मैं संभालने से क्या नहीं, वो आयता वक्त का अच्छा असर करते हैं, खाई जाते हैं, ऐसा हवे को खाइए का मस्जिद को चल गए खाई जाते हैं। मैं भी कहा जा तो हाथ में हाथ डाल कर मुसलमान हो जाती हूँ, दरिया में निकल कर आते हैं पहले पहला तो, उसके बाद हो गए ऑलरेडी हो गए मुसलमान। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये नेमत दिया है, कौन सी नेमत? कुरान। और ये हमारे लिए नेमत भी है और सारी दुनिया के इंसानों के वास्ते। कुरान किताब सिर्फ मुसलमानों के वास्ते नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाता है सारी दुनिया के इंसानों के वास्ते कुरान है, सब जने भी पढ़ो। जैसा हवा सारी दुनिया के इंसानों के लिए है, पानी सारी दुनिया के इंसानों के लिए है, रोशनी उजाला सारी दुनिया के इंसान के लिए इंसानों के लिए है, तो ये कुरान भी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, ये सारे नेमतों से बड़ी नेमत और ये सारी दुनिया के इंसानों के लिए अल्लाह ताला दिया है। एक बात हुई। अच्छा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज ही हमें जुम्मा में पढ़ते हैं, मामूल से सुनती हैं तुम्हें जुम्मा में स्टार्टिंग में आए तो बल्ला का दिया देरी साथी लोग शुरू में आओ हमें बोल 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 को मुंह मारने को बढ़ जाते हैं, आते चले 15-20-30 में आती, बाकी 60-70 में घुल पाती देरी से। उनको मालूम नहीं क्या पढ़ती थी, हाँ पहले तो नहीं मालूम होने क्या पढ़ती, ये पढ़कर इसके बारे में एक वाकया है बोलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ये पढ़ती मामूल से जुम्मा के दिन फर्स्ट में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी आया, दूसरे गांव से एक आदमी आया। वो आदमी क्या था, जिन्नात को निकालता है, शैतान आपको निकालता है, उन्हें क्या कि मंत्र मारता है। अब हमारे हिंदू पढ़ते हैं होम भी दिन पढ़ा लेकर, तो वैसा उन्हें क्या कि पढ़ता था, उन्हें क्या कि वो पढ़ने के ये बना लिया था, उन्हें मंत्र में उन्हें बना लिया था। तो लोग बोले कि भाई ये देख यहाँ एक आदमी है, कौन मोहम्मद का एक आदमी है, ये आदमी को क्या है जिन्नाता क्या की लगी, शैताना क्या की पकड़ता नहीं, ये आदमी क्या क्या की बोलता रहता है, क्या क्या कहता क्या कुरान का आयता, उन्हें क्या क्या की उसे बोलते करता रहता है, इसे क्या तो इलाज कर भी दे रहा है। अब उन्हें क्या कहता, अच्छा क्या कि मैं भी एक बड़ा आदमी, मेरा बड़पन दिखाना कर, इलाज करना कर, तो उसका नाम आपको जमाद ज़वाद मीम अलिफ दाल, ज़वाद मीम अलिफ दाल, जमाद अल अज़दी, अज़द कबीला का आदमी था। सही मुस्लिम शरीफ में, मुस्लिम की किताब में, बुखारी मुस्लिम की किताब, तो उसमें एक हिस्सा है। तो उन्हें आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आको बैठा, बैठने के बाद बोला और पूछा कहाँ ही मोहम्मद को, तो वहां ही दो वो घर में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अच्छा ले भाई, बात करने से पहले ये बात पढ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वो मन युज़लिलिल्लाहु फला हादिय लहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। समाना क्या, अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है उसे दुनिया में कौन भी गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे गुमराह करना चाहता है उसे दुनिया में कौन भी हिदायत दे सकते नहीं कर। ये कब पढ़े कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल से बात करने के लिए ऐसा अल्फाज, तो ये आदमी दम हो गया, थका पिका हो गया। उसके बाद जी जी अब एक बार बोलो, अब तुम बोलो अब एक बार पढ़ो क्या। तो नबी साहब धीरे शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। हम पढ़ दिया जुम्मा को, वो दूसरा एक बार, दोनों बार पढ़ा तो नबी साहब दो बार पढ़े तो इसके आंग में पूरा उतरेगा, आइस होगा, पूर होगा। फिर बोला हजरत अब एक बार पढ़ो हजरत। तो नबी साहब फिर पढ़े, इनको इलाज करने आया सो किसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाज करने आया सो। अब यहाँ क्या हो गया है, इन्हें इलाज हो गया है, शिकार करने आया इन्हें शिकार हो रहा है। देखो शेर को मारने गया,
शेर के निगाह को उसका निवाला होगा, शेर को मारने की दूर की बात, शेर के मुंह में निवाला होगा पड़ेगा। तो वैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इलाज करने के लिए आया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात सुनकर 3 बार सुनकर बोलता है, या मोहम्मद आप अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ में हाथ डालकर मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। ये बात आप दुनिया में कौन भी इतना अच्छा सेट कर को बोल सकते नहीं, और ऐसा आदमी को शैतान आप पकड़ सकते नहीं। ये गलत है, ये झूठ भी बोलते हैं दो मारे बोलकर वो आदमी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये कुरान की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की बरकत है कि दुश्मन भी आपके इसमें आ जाते थे, समझ जाते थे और मुसलमान हो जाते थे, मुसलमान हो जाते थे। अच्छा, अब उसके बाद ऐसा अगर बोल दे गए मरीज नहीं, वो से हजरत भी बोले तो 10 दिन 10 रात बोले तो भी ये बयान खत्म होने का नहीं। इतना अहम और इतना बड़ा बयान किसका? कुरान का। और अल्लाह क्या फरमाया है कुरान के एजाज को तो स्पेशलिटी के बारे में एक आयत 2 जगह है, अल्फाज जरा बदल को ही। अब हम क्या बोलते हैं, अबर आती है, अरे बादल आती है, बादल को तो वो अबर पता लफ्ज अलग है, चीज एक ही। तो वैसा अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाया है, बड़ी जबरदस्त बात, बड़ी जबरदस्त बात। लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा। बड़ी प्यारी आयत, ऐसी आयत अब एक जगह में कुरान में 2 जगह। तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के बातों को, अल्लाह की कुदरत को तुम्हें लिखना करके बोल लिए तो ये दरिया का पानी है, बोलते नहीं 7 दरिया करके, वो 7 दरिया का पूरा पानी भी इंक बना डालो, इंक बना डालो। और जमीन के ऊपर कितने झाड़ा हिंकी, वो सारे झाड़ा को काट को कलम बना डालो, पेन बना डालो। पुराने जमाने में, पुराने नवे बच्चा में मालूम नहीं, अब ऐसे पेन कैसा रिफिल इंक का लिख डालती सर डालती। पुराने जमाने ऐसा नहीं था, एक टाइप के सर का पेन था, उसमें इंक डाल लेते थे, पिलर से इंक डाल लेते, लिखते थे, वो इंक होगी तो फिर तो इंक डाल लेते, ऐसा जमाना था पुराने। तो ऐसा अल्लाह फरमाता है, अगर सारी जमीन का पानी भी तुम्हें इंक बना डालो और सारे जमीन के ऊपर ही झाड़ा को तुम्हें काट को ढालिया बैठ को सुना क्या दुनिया की चीजों के बारे में, सारी चीजें सुनता था, पूछता था, मालूम कर लेता था। कुरान की बात को काके तो पढ़े को कि पढ़ने आता नहीं, पर वो बोल देते ना तो जाकर बैठ को सुना क्या, 1 रुपया खर्चा नहीं, कम से कम 1 आधा घंटा 40 लाख 20 लाख 30 लाख बैठ को सुना रहता है। क्या कुरान में क्या है जरूरत, ये मालूम होता नहीं क्या, अल्लाह पूछता है। तो उसके वास्ते वो सवाल से अल्लाह करने हमें बचने के वास्ते, हो अल्लाह हमें सुनिए, अल्लाह पढ़िए, अल्लाह क्या कि हम को मालूम है इसके हम अमल करिए, अल्लाह जर्रा की थोड़ा बोल दो, हम को माफ कर, अल्लाह को पूछने के लिए एक सूरत को रखिए हम तो उसके लिए मैं भी बचना, मेरे भाया भी बचना। तो उस इरादे से ये प्रोग्राम क्या कि बयाना बोलना, आहा वो क्या भी नहीं, कुरान की बात, कुरान की बात का मतलब अल्लाह के बंदे को पहुंचाना। ये किताब अल्लाह की, हमें अल्लाह के बंदे, तो अल्लाह की नेमत हम को मिलना, मालूम होना। अच्छा, ये और भी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, मैं रमजान में एक बात बताया था, वो बात बोलकर बाद में एक छोटा वाक़या बोलकर बात खत्म करता हूँ। वो बात क्या है कि कुरान जो आदमी पढ़ता है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने कुरान आकर एक इंसान की शक्ल में खड़े हो जाते, इंसान या कुरान उसकी एक शक्ल बात करे सर आप खड़े हो जाती किताब, और बोलते अल्लाह इसे तो माफ करे तक मैं जाती नहीं, किताब बोलती है। तो ये बंदे को माफ कर, कई को इन्हें पढ़ता था, इन्हें कुरान को पढ़ता था, कुरान को सुनता था, तो इन्हें पढ़े से वास्ते, सुने से वास्ते, समझे से वास्ते, तो इसे माफ कर अल्लाह को। और अल्लाह बोलता है जान दे जा भाई मेरा हिस्सा मैं देखो तो नहीं, मैं जाती नहीं। कुरान बोलती है किताब मैं जाती नहीं, तो इसे माफ कर दो, इसका हिसाब किताब क्लियर कर दो, जा ये माफ नहीं करोगे मैं जाती नहीं।
तो इतना बड़ा एहसान और इतनी बड़ी मदद करने वाली है किताब हमना को। कौन सी किताब है? कुरान किताब है, इतनी बड़ी मदद करने वाली है हमना को। तो उस बात हमें कुरान पढ़ना, सुनना, समझना और उसके मुताबिक से अमल करना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद आखिर में एक हिस्सा बताकर बात खत्म होता। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? जनरल पब्लिक को समझाने के बाद दूसरे मुल्कान के बादशाह हमको खत्ता लिखे, भाई मैं अल्लाह का नबी हूँ, आखिरी नबी हूँ, अल्लाह मुझे कुरान दिया है, इस्लाम है, ईमान है, तो अल्लाह को मान, अल्लाह का बंदा तू माने आपको क्या होता है? तू भी जन्नत को जाता है कर बोल को, और तेरे अज्ञान को बोल, तेरे कंट्रोल में कितने अज्ञान नहीं करो। ये हिस्सा मैं अब तक कभी बोला नहीं, आज बोलता हूँ, सुनो, बड़ा अच्छा हिस्सा है। बोला नहीं तो अल्लाह के ही बोलते 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 एक एक हिस्सा छोड़ जाता है, एक एक हिस्सा छोड़ जाता है। फिर हमें किताब वहां पढ़े इसके को, अरे रे ये हमें सुने नहीं ना, हमारे भाइयों को सुनेंगे करने का। तो कुरान सुन को समझ को ईमान ऐसा नहीं, सुन को समझ को मेरा बड़पन क्या हो जाता है कि मेरा बड़पन, मेरी इज्जत, मेरा मर्तबा, मेरा पोस्ट, मैं कहता हूँ मेरी इज्जत चल जाती क्या कि मैं ये कुरान की बात सुनता, अमल कर लिया तो मान जाते हो को। जरिए सुने नहीं वाले, छोड़ वाले वाले भी, वो छोड़ वाले वाले में एक हिस्सा एक क्या करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, एक एक कंट्री मुल्क, वो मुल्क के बादशाह को खत लिख को भेजे, जाओ भाई ये मुल्क के बादशाह को तुम्हें खत लिया दो, ये मुल्क के बादशाह को तुम्हें दो, ये मुल्क के बादशाह दे को। हजरत दिहिया कल्बी एक सहाबी थे, उनको रोमन अंपायर के दिन, इटली, अब इटली देश में है नहीं बड़ा, तो वो वहां उसे रोम पर बोलते वो जमाने में। वो मुल्क का बादशाह सारी दुनिया में बड़ा, दो बादशाह थे, एक रोमन अंपायर, एक पर्शियन अंपायर। पर्शियन तो ईरान, ईरान का बादशाह एक, रोम का बादशाह एक। तो रोम के बादशाह को खैसर का तो बोलते, खैसर उसका लक़ब बिरुदु, वो बिरुदु रखने को उन्हें हुकूमत करता था, वो इलाका से भी आधा इलाका। तो उसके पास से भेजे नबी साहब, ये खत दे को भेजे, जाओ जाकर वो बिल्कुल दे, वो खत ले ले को ये आदमी बादशाह के पास ले आकर दिए। उन्हें खत देखा, क्या है इसमें? अरे बादशाह, तू अल्लाह का बंदा, अल्लाह तुझे पैदा कराया है, तू अल्लाह को मान, अल्लाह की बात मान, अल्लाह के हुक्म पर चल, तू कामयाब होता है, दुनिया में कामयाब होता है, आखिरत में कामयाब होता है। तो उसमें लिखा असलिम तस्लम, तू इस्लाम ला तो कामयाब होता है। तो उन्होंने क्या करा, ये खत कहां से आए? तो देखे तो मक्के से आए, ये खत मदीने से, मक्के से नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने चल रही, मदीने से आए। कौन भेजे हैं? मक्के के, ये मदीने के एक नबी भेजे हैं। तो ये बोला भाई, वो दूसरा कंट्री सीरिया का कहने वाला, सीरिया मुल्क शाम, वहां बैठा था उन्हें, वो एरिया पूरा उसका था, वो इलाके में आकर बैठा था। तो क्या करा, वो बादशाह काम करेगा तो उसके पीछे से कौन कौन जाते हैं? उसके मंत्री लोग, वजीर जाते हैं, उसके सिक्योरिटी जाती है, सब भी जाती है बादशाह के। जब ये खत पढ़ा जाता है, अच्छा ये गाँव में कौन से भी अरब वाले हैं क्या? देखो जरा गाँव में मालूम कर लो। अब अज्ञान है कि गाँव पूछे भाई कौन तो भी मक्के से हैं क्या, कौन तो मदीने से, अरब से हैं क्या, अरब वाले, सऊदी अरब वाले कौन तो हैं क्या? वहाँ इत्तेफाक से अबू सुफियान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससरा भी और बड़ा दुश्मन भी, मक्के का सरदार लीडर, इधर मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर थे, तो उधर उन्हें मक्के में लीडर, सारे जंगा में उन्हें लीडर था। सब उन्हें वहां दिशा कौन बोलते मेरा अबू सुफियान, जहाँ को बोले ऐसा बादशाह बोलते ही तुम्हें कौन थे आना कहते, अच्छा ले आप लोगों को गया। अब उसके साथ जो में व्यापार हो गए थे, उन्हें 10-15-20 आदमी गए। जाने के बाद अब वो सब आते हैं कि इसका जोर दिखाना नहीं, तख्त पर बैठा, अच्छा किरीटम लगा लिया, अच्छे कपड़े पहना, सब हंगुलो हार बाटा लोग कहने, वो हिसाब से बैठा। बैठ कर पूछा, क्या भाई तुम्हें कहाँ वाले? हमें मक्के वाले, सऊदी अरब वाले। अच्छा क्या कि मैं सुना ना एक बात, तुम्हारे पास कौन की पैगंबर आएंगे थे ना, ऐसा नबी आएंगे थे ना? हाँ आपको है कैसा, आपको बोल देता है वो आदमी नबी कर दो। और क्या बोला मालूम, बात इनके बात उसे आते नहीं, उनकी बात ऐसे आते नहीं। इसे ये बादशाह को
ये उसके रोमन भाषा अलग है, इनकी अरबी भाषा। तो बीच में एक जने को ट्रांसलेटर को बिठाया, ट्रांसलेशन करने, तर्जुमा करने। इसके बाद उन्हें बोले, उनकी बात इसे बोले, बिठा लिया और बोला कि लोना हो, ये आदमी तुम्हारा लीडर कहते हैं, इन्हें सत्य बोला तो तुम्हें सब भी सत्य कर बोलो, इन्हें बात का झूठ बोला तो तुम्हें सभी इन्हें बोला झूठ कर बोलो। अच्छा लेकर बैठ को बात की शुरू हुई। तो पूछे वहाँ एक 10 सवाल पूछा उन्हें, वो 10 सवाल के जवाब भी वो दुश्मन हाथों में करेक्ट से दिया। वो देखो दुश्मन हाथों में करेक्ट से दिया। क्या पूछे? वो नबी कहते हैं ना, उन्होंने तुम्हारे दरमियान फर्स्ट सवाल उसका खानदान कैसा भाई? कहते भी मामूली थर्ड क्लास के आदमी, कुली मजदूरी करने वाले थर्ड क्लास के आदमी, कहते इज्जत वाला खानदान क्या है? तो अब उसमें हाँ नहीं, इज्जत वाला खानदान। मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब एक गांव के बड़े में अच्छा खानदान, इज्जत वाला खानदान है। अच्छा, दो सवाल पूछा, वो आदमी के खानदान में पक्का कौन तो बादशाह है क्या? बादशाहगिरी करेगा, राजू है क्या? नहीं वैसा क्या राजू कोई भी नहीं। तीसरा सवाल पूछा, वो आदमी कब तक झूठ बोले क्या? उन्होंने बोला अबू सुफियान दुश्मन नहीं है तो नहीं, कब झूठ बोलेगा। उन्होंने पूछा हो क्या? बोला हाँ करेक्ट, बोलते करेक्ट। अच्छा, वो आदमी क्या बोलता है? बोलो क्या बोलता? अल्लाह को एक जने क्या करना कहते हैं? नमाज पढ़ना, अल्लाह को याद करना, रोजे रखना, धोखा करना नहीं, शराब पीना नहीं, झूठे बात बोलना नहीं, बुरे काम करना नहीं, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद सवाल ऐसा थे, 10 सवाल कराया, वो पढ़ थोड़ा टाइम बल्ला पाया था, मैं सिंपल में बोलता हूँ। उसके बाद बोलता है अच्छा उसके कलमा पर वो बोलते उसके दिन में जाते ही क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद कलम तो उसके तरीके से जाते हैं क्या? तो जाते हैं बल्ला जन जाते हैं तो ही ना मदीने में बल्ला कितना 5 सवाल आ गए। फिर सवाल अच्छा कौन भी कलमा पढ़ा सोना मुसलमान बिल्कुल रिवर्स नकबा ये इस्लाम, मैं मुसलमान हटा नहीं करो, बिल्कुल चलेगा हो जाता है क्या? काफर हो जाता है क्या? कौन चलेगा? ओ एक बंदा होता नहीं गया तो दीवाना हो लटर मर जाता है, जो दम दिया तब फिर वापस आता नहीं, एक जना जो वापस आता नहीं है। 6-7 सवाल है। उसके बाद पूछा अच्छा वो आदमी का तो दिमाग का तो काम करता ना है क्या? हाँ नहीं अच्छा है, भेजा अच्छा है, दिमाग के भी दीवाना के भी नहीं ऐसा। अच्छा तुम ना बोलो जंग चलिए क्या? लड़ाई हुई है क्या? मारा मारी चलिए? हाँ चलिए बात बल्ला बात लड़ ली। अच्छा कैसा रहता है पोजीशन, रिजल्ट कैसा रहता है? तो रिजल्ट क्या, उन्हें एक बार जीतते, हमें एक बार जीतती, उन्हें एक बार जीतते, फिर कभी जीते सो नहीं। वो जंगे वहद में मारे गए नुकसान हुआ नहीं साहबा को, वो हिसाब से अल हर्ब बैनना व बैनहुम सिजालुन क्या अरबी में, तो वो जंग रखो उनके हमारे बीच में पानी के बजट के सरकार रस्सी से छोड़े तो बजट एक बार डूबती है, एक बार डूबती है, मालूम नहीं कब कैसे डूबती है कि इधर को गिरेगा उधर वैसा उनके हमारे जंग आपको वो बजट के सरकार भी तो कभी एक बार होती है, एक बार हमें जीतती है। अच्छा ये काम करो आदमी का तो पैसे पूछता है क्या? पैसे कलेक्शन करता है क्या? यार मैं अच्छी उसका नहीं देगा तो नहीं 1 रुपया निकाल लिया। ऐसे 10 सवाल करें, ये 10 सवाल के जवाब तो वो आदमी बादशाह जो था उन्हें बोलता है अरे लोगा हो सुनो, मैं पूछा एक एक बात को तूने हर बात को भी करेक्ट से जवाब दिए नहीं। अब उन्हें क्या करा है बादशाह, वो बड़ा घर था, हाल जैसा का बड़ा हाल, पूरे दरवाजे मुझ में फरमान है, अगला बल्ला वो सिक्योरिटी करता है कि जिन्हें को पुलिस वाले को कौन भी बाहर जाना नहीं, अंदर वाले बाहर जाना नहीं, बाहर वाले अंदर आना नहीं, मैं तो ये चलाता है, दरबार चलाता है। वो पूरे बातों को जवाब बोला, मैं ऐसा पूछा तो तुम ऐसा बोले, मैं ऐसा पूछा तो तुम ऐसा बोले, मैं ऐसा पूछा तुम ऐसा बोले। ये सारे बातें सुनने के बाद मुझे समझ में आता है कि वो आदमी सच्चा नबी है, वो आदमी सच्चा नबी है। कभी झूठा आदमी ऐसा हो सकता नहीं। वो आदमी बड़पन होना कता नहीं है, बादशाह के लिए बनना कता ना है। उनके जमा खानदान में कोई बादशाह है तो हमारे बाबा का बादशाह नहीं, मैं भी वो पदवी होना करको लगता है कि बोल देगा। बादशाह नहीं उनके जमाने में कोई भी बादशाह नहीं, तो
तो अब वो बदली होना का क्या लगता है, पैसा होना बताना है, क्या भी नहीं है, अच्छे बात बोलता है। तो ये सारे बातें से मुझे समझ में आता है कि वो आदमी अच्छा आदमी है, नेक आदमी है। अपने दरबार में बैठे थे ना वजीरा मंत्रिया, उनको सबको बोला, अरे लोगों बेहतर है तुम्हें हमें सभी मिलकर कलमा पढ़ लेंगे, मुसलमान लीजिएगा। तो ये क्या मेरे रस्ते का इसका नहीं लगा सकते, ठक कर डेढ़ बदला है। अरे ढेरा आओ आओ, कहाँ भागते हैं, आओ भाई आओ आओ, बैठो बैठो, मैं तुम्हें एक बात बोलती सुनो। अब मुझे रास्ता नहीं बैठो, आप बैठे, मैं तुम नाम चुपके टेस्ट करा दिए, मैं तुम नाम वो चुपके टेस्ट करा था। उन्होंने सब भी ईसाई थे, क्रिश्चियन, उन्होंने सब भी क्रिश्चियन थे। तुम्हें तुम्हारे दिन में कितना घट थी कि देखना करा था। अब्बा तुम्हें बड़े अच्छे ने बड़े घट थी, तुम्हारे दिन में तुम्हें घट थी, वो इनको और अभी को तुम्हें मानते मुझे समझ में आ गया है, घट नहीं बड़ा परफेक्ट लगना है तुम्हें। मैं भी होता था, आ जाओ हमें सभी हो चलिए, हमें वो बात मानने की जरूरत नहीं, हमें मानते नहीं। देखो बात समझ में आ गई, हाथ सामने आ गया, लेकिन फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं और मानने के लिए तैयार नहीं। क्या आ रहा है उसे, मैं अगर अब जरा जोर से बोला तो इन्हें पहले मारना की मजे। और हदीस में आता है, नबी साहब फरमाते हैं कि वो लोग ऐसा मेरी कुर्सी मेरा ओहरा चल जाता है, ऐसा से उसको चंद लोग लिए ली। हालांकि क्या करना था, लेना था, इस्लाम लाना था, कलमा पढ़ना था, मुसलमान होना था। ऐसा कि खत दूसरे की भाषा के पास दिया तो उन्हें क्या करा, खत लिया, ले को फाड़ को सामने पढ़ा भी नहीं। मंजे इस्लाम की तरफ बुला, कौन वो आदमी मुझे बुलाने वाला कर। जब ये बात सहाबी जो सहाबी गए थे वहां को बोले, या रसूलुल्लाह ऐसा खत फाड़ डाला है, तो नबी साहब बोले अल्लाह इसे देखा तो फाड़ रहा था, इसकी हुकूमत पे फाड़ रहा था, इन्हें देखा तो बर्बाद हो जाता। देखो अगर बोले तो चंद दिनों के बाद उसका बेटा जिसे दम से मारा को सीट पर बैठा, उसका बेटा जिसे दम से मार को सीट पर बैठा। अल्लाह कहे मेरे खत को कैसा फाड़ा है, अल्लाह उसे फाड़ा। तो इस तरीके से जो लोग माने सहाबा बने और जन्नत के हकदार हुए, और जो लोग नहीं माने, नहीं समझे, जरूरत नहीं अगर समझे, उन्होंने क्या होगी अल्लाह के रहमत से महरूम हो। तो आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, क्या अल्लाह परवरदिगार रब्बुल आलमीन हमारे सारे मुसलमान भाइयों को सारी जिंदगी कुरान को पढ़ने, कुरान को सुनने, समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।